Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to learn about polymorphism in Java in details, and we will see what are the different types of polymorphisms are there in Java. Okay, so polymorphism means what? We already learn some of the features of object oriented programming जहाँ पे कि आप लोग encapsulation, inheritance, polymorphism, message passing. These are some of the features of your object oriented programming और characteristics of object oriented programming आप लोग देखें. So इसमें से एक है आपका polymorphism. So poly means many and morphism means forms. So here there are various methods are there which it's having different which are in different forms in different situation. Okay, which means that कि वही नाम का मेथड कैसे डिफरेंटली एक्ट कर रहा है इन डिफरेंट सिचुएशन. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे आप एक पर्सन को ही ले लो. सपोज देर आर टू पर्सन्स, दैट इज आपका एक डॉक्टर है, आपका एक कारपेंटर है. सो हियर द डिफरेंस इज दैट डॉक्टर का काम क्या है, विच प्रोवाइड्स और विच हु टेक्स केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड carpenter का काम क्या है, to provide you the furnitures. Okay, so here they are comes under this person category, but they उनका work different है. In different these persons are working differently in different situation. Okay, so as their career they are working in different way. Okay, so here what will happen that अगर मैं job का बात बोलूँ, suppose there is a method called your job और what they does एक method लूँ. so doctor check care of your health, and दूसरा में carpenter का एक method लूँ, that is a does method. वो क्या करता है, so here to provide you the furniture or making furnitures. Okay, so here we will learn there are two types of polymorphisms are there, that is your compile time polymorphism and another one is your runtime polymorphism. So compile time polymorphism is also known as your static polymorphism, and runtime polymorphism is also known as your dynamic method dispatch. Okay, so why it is called so, so we will see. So यहाँ पे आपका जो compile time polymorphism है, यहाँ पे that is done by your method overloading और method आपका operator overloading. ओके, बट आपका जो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है और जो आप का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हो, दैट विल बी डन बाय मेथड ओवरराइडिंग. सो यहाँ पे आपका क्या होता है ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका इट इज़ द प्रोसेस इन विच द overridden method is resolved at the runtime. So this is called as your runtime polymorphism, and we will see that यहाँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जहाँ जो कि आपका ओवरराइडिंग मेथड है. सो जो ओवरराइडिंग मेथड है वहाँ पे आप लोग देखोगे कि इफ देयर इज पेरेंट क्लास, जो आप लोग इनहेरिटेंस में देखेंगे. सो पेरेंट का क्लास है, अगर पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास में सपोज तो मेथड है विच इज़ हैविंग सेम नेम, देन किस क्लास का मेथड को आप एक्सेस कर रहे हो, दैट यू कैन डिटरमाइन इजीली बाय मेथड ओवरराइडिंग. ओके, so we will see the runtime polymorphism in your next class. Today we will learn the method overloading. So method overloading is done by two ways, that is one, आपका जो method है उसमें आप सिर्फ argument को चेंज करोगे, which means that कि यहाँ पे the types of argument को आप चेंज कर सकते हो. in one way आप types of argument को चेंज कर सकते हो. in the second way the number of argument को आप लोग चेंज कर सकते हो. okay, so there are two ways. So let us see. So
polymorphism in Java polymorphism is mainly divided into two types, that is your compile time polymorphism. So it is also known as static polymorphism, and this type of polymorphism achieved by function or the method overloading or a method or operator overloading. So method overloading में same method name होगा, okay, how they act differently. and operator overloading में यहाँ पे मैं नहीं दिखाई हूँ, but operator overloading में क्या होता है, जब आप दो string को add करते हो, it will give you the आप वो दोनों string join होके आता है. suppose Joe Biden who is known as your आप अभी अमेरिका को वो प्रेसिडेंट रिसेंटली बने हैं. सो अगर जो एंड बिन, सो ये दोनों नाम का अगर मैं ऐड कर दूं, सो इट कंप्लीट नेम दिखाएगा. ओके, वो भी एक एडिशन, मतलब कॉन्कैट कर रही हूँ या फिर ज्वाइन कर रही हूँ दोनों को, ओके, या फिर मर्ज कर रही हूँ दोनों को. लेकिन आप जब एडिशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो फॉर सम कैलकुलेशन पर्पस, मीन्स 2 + 3, देन इट विल गिव यू द रिजल्ट दैट इज योर 5. ओके, सो वहाँ पे जो स्ट्रिंग था जॉ बिडेन, दैट इज कंबाइनली आपको दिखा रहा है. यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 2 + 3 को ऐड कर रहे हो, एक डिफरेंट रिजल्ट दिखा रहा है वो. ओके, so here there are mainly two variations of method overloading, that implementing 2 or more methods that have the same name but take different numbers of argument. Here implementing 2 or more methods that have the same name but take argument of different types. Okay, so here in runtime polymorphism it is known as dynamic method dispatch, and it is the process in which the functions or the method call to the overriding method is resolved at your runtime. So this type of polymorphism is achieved by your method overriding. And what will happen here, that जब कि in this process an overriding method is called through the reference variable of a superclass. Okay, and the determination of the method to be called is based on the object being referred to by the reference variable. Okay, so we will see that in method overloading मैं ऑनलाइन IDE में उसका प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ. So let us see that here देखो, यहाँ एक ऑनलाइन IDE है, दैट इज फ्रॉम योर Geeks से मैं ली हूँ. सो हियर क्लास एड एग्जाम्पल, एक क्लास का नाम है, दैट सीनियर कैपिटल लेटर. मैं यहाँ पे मेथड विथ 2 पैरामीटर ली हूँ, दैट इज योर int a एंड b, और आर्गूमेंट पास की हूँ, 2 आर्गूमेंट पास की हूँ, दैट इज ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप. ओके, and in this body part of this method, that is this is the method definition. okay, यहाँ पे मैं रिटर्न की हूँ 2, a + b का वैल्यू जो आएगा आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, नाउ यहाँ पे देखो वही सेम नेम का एक मेथड ली हूँ, जहाँ पे कि मैं 2 पैरामीटर और 2 आर्गूमेंट पास की हूँ, बट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज योर डबल एंड दो और एक भी आपका डबल. Okay, so it will now I will return the value of this, जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया उसको ऐड करके जो भी वैल्यू होगा मैं उसको आउटपुट स्क्रीन में देखना चाहती हूँ. नाउ कम टू द मेन मेथड. हियर आई एम टेकिंग another class, that is main class, and inside that I am writing the main method here, and I want to print the value of this method, this add method, जहाँ पे कि आप इंटीजर वैल्यू पास किए हो, एंड दिस एड मेथड जहाँ पे कि आप लोग डबल का वैल्यू. सो डबल मीन्स आप क्या कर रहे हो, मीन्स सम डेसिमल पॉइंट रहेगा. ओके, सो हियर आई एम टेकिंग 2 वैल्यूज, दैट इज आप क्या यहाँ पे जेहेतु आप लोग क्या 2 जो मेथड लिए हो, दैट उसके पहले आप स्टैटिक लगाए हो, सो नो नीड टू क्रिएट हियर ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करना कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं सिंपली क्लास के थ्रू उसको कर रही हूँ, या फिर आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो एड एग्जाम्पल डॉट एड 2,4, दिस इज द इंटीजर वैल्यू. सो जब आप 2,4 दे रहे हो, सो इट विल मूव टू विच पोजिशन, दिस, सो दैट वो आपका इंटीजर वैल्यू है. सो यहाँ पे आएगा और इसका बॉडी में जो भी a + b रिटर्न होगा. सो 2 + 4 योर 6. नाउ कम टू दिस पोजिशन, दिस इज द डबल वैल्यू. ओके, सो डबल टाइप वैल्यू. सो
दिस विल गो टू दिस पोजिशन एंड जब ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका एक टाइप का फंक्शन कॉल हो रहा है. ओके, दिस यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है. So it will move to this position and it will print a plus b, that is your 5.5 and 6.3, that is your 11.8. So the output screen में आप अगर रन करोगे, it will show you the output. Just wait. See, 6, 11.8. Okay, now come to, मैं आर्गुमेंट का जो भी नंबर है उसको चेंज कर रही हूँ. फर्स्ट में मैं 2 आर्गूमेंट ली हूँ, इंट ए इंट बी, सेम एज योर उसी टाइप का, एंड रिटर्न द वैल्यू. यहाँ पे 3 आर्गूमेंट ली हूँ ऑफ सेम टाइप एंड रिटर्न द वैल्यू. नाउ मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे कोई स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं की हूँ, दैट इज वाई आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, दैट इज योर एड मेथड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की हूँ obj. सो ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है एंड दिस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर रही हूँ. सो obj डॉट एड, यहाँ पे 2 वैल्यू, मतलब जब 2 वैल्यू कर रही हूँ इट विल गो टू दिस पोजिशन, जहाँ पे कि 3 वैल्यू मैं एक्सेस कर रही हूँ दिस विल गो टू द दिस पोजिशन. ओके, नाउ सी द आउटपुट. See 30 and 60. Okay, so this is about your method overloading. There are various programs are there and some vehicle programs are there also of your method overloading. Okay, in the next class we will see runtime polymorphism and your method overriding. Okay, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वैल्यू पास की हूँ, यहाँ पे 3 वैल्यू पास की हूँ. अगर मैं 4 वैल्यू यहाँ पर पास कर दे रही हूँ तो आउटपुट आपको क्या दिखाएगा. सो 4 आर्गुमेंट तो मैं कहीं पे भी पास नहीं की हूँ या फिर पैरामीटर पास की हूँ. सो इट विल शो यू द एरर. क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है और उसका लेंथ वेरी कर रहा है बिकॉज आई एम टेकिंग 4 वैल्यूज हियर. सो 4 वैल्यूज का कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे मैं पास नहीं की हूँ. ओके.